Morning, students. I suppose we are meeting after a long time, and now let me just tell you about the English book. This is the book for class 7 base activity based English course book, and now I am going to start the first chapter. The name of the chapter is The Coming of Spring. It is a poem, a very short poem written by Sarojini Naidu. I suppose you have heard the name of Sarojini Naidu earlier also. If you have heard, well and good. Or if you haven't heard, then let me tell you something about the poetess itself. She was born on 13th February 1879 at Hyderabad, and she died on 2nd of March 1949 at Lucknow at the age of 70 years due to a heart attack. She had a severe pain in the chest which resulted in heart attack, and she lost her life at the age of 70. She was a very famous freedom fighter, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्त्री स्वतंत्रता सेनानी. She was the first woman governor of Agra and Audh, the provinces, in the year 1947 to 1949. 2 वर्षों के लिए वो प्रथम स्त्री गवर्नर थी आगरा और औध में सन 1947 से लेकर 1949 तक. उनकी कविताएं इतनी मशहूर थीं कि शायद उनको एक अलग सा नाम, एक उपाधि मिला गया था. शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. जो कोकिला हम लोग कहते हैं, वो कोकिला के रूप में, भारत के कोकिला के रूप में उनको वो उपाधि भी मिली थी. शी वॉज ऑल्सो called the Nightingale of India. It is a very big thing, I think so, for a person. If somebody calls another person as the Nightingale of India, that means definitely that person has got lot of vocal power and lot of expression and ideas in his or her biographies and poems. Over here, Sarojini Naidu, she has very well explained about the coming of the spring, a poem where she is now thinking that she is of the old age. She has grown up, she has become old, and she does not have that enthusiasm. उनके अंदर में वो हर्ष उल्लास, वो जोश और वो उमंग नहीं है जो उन्होंने बहुत पहले वर्षों, जब वो यंग थी, जवान थी, उस समय में उन्होंने दौड़ के जाती थी स्वागत करने के लिए बसंत ऋतु का. स्प्रिंग, व्हेन आई से स्प्रिंग, इट इज द बसंत ऋतु व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हेन द as soon as the season used to start come, in the early days she used to run and go and greet the season, the spring season. But now she has grown old, but then also she remembers the days, and she is asking for forgiveness that now she is not able to run, and she does not have that bright dresses which she used to wear and go and greet the spring. So she is asking for forgiveness due to her old age, but she is still faithful. आज भी वो उसी तरह का उनके अंदर में वो विश्वास है, वो भरोसा है कि जो उन्होंने बहुत पहले बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए दौड़ के जाती थी, आज उम्र के तकाजा, उम्र के कारण वो कार्य कर नहीं पा रही है, लेकिन उनकी मन में वो बातें है और वो कुछ अपनी जो गाना है, गीत है, जो सॉन्ग्स है, द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग, मेनी ऑफ द सॉन्ग्स शी हैज फॉरगॉटन ड्यू टू द ओल्ड एज. So now I have just given you an introduction of the poem about the poetess. अगर वो कवि है
तो पोएट होंगे, अगर कवित्री है तो पोएटेस होंगे। तो ओवर हियर शी इज पोएटेस सरोजिनी नायडू, अ वेरी फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर, a woman patriot, first woman patriot, freedom fighter. She is known, well known for her poems and as a poet of nature, love, death and patriotism. इन सब के ऊपर में वे काफ़ी अच्छा से अपनी कविताएं लिखती थी और इसके लिए वो मशहूर थी, जिसके लिए आज भी उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। Now let us come to the poem. First chapter, the coming of the spring. I will just read partly. I'll explain in between the hard words and also come to the exercise which is given at the back. And then after that, while I conclude, I will give you the homework which you have to do and you have to submit. Now open your books. Let me just start. The coming of the spring. The poetess heart is heavy with sorrow of life. She has forgotten her old youthful songs. Laughter has now become a stranger, so she cannot welcome the spring with that youthful zeal. She begs spring to forgive her for this change. ये कविता के माध्यम से वो ये कहना चाहती है कि मैं वसंत ऋतु से क्षमा चाहती हूँ कि मैं वो जोश, वो हर्ष उल्लास और उमंग के साथ आपकी मैं स्वागत नहीं कर पा रही हूँ जो हमारे पास बहुत पहले था जब मैं जवान थी। तो इसके लिए वो क्षमा मांग रही है, क्षमा प्रार्थना कर रही है। Now let us come to the first paragraph. You can see very well the photo, how it is an imaginary photograph where the poet is sitting and she is just thinking of the past days, the past when she was youth, and the spring when she used to run and with laughter and joy she used to greet, उसकी स्वागत करती थी। First paragraph. Oh spring, I cannot run to greet your coming as I did of old, clad in shining veil of gold and silver anklets on my feet. वे कह रही है कि मैं वसंत ऋतु दौड़ के आज मैं आपके पास नहीं जा पा रही हूँ जो मैं पहले किया करती थी, और मैं उस समय पूरा सोना गहना पहन के और हमारे पाँव में जो ये होती है एंकलेट्स जिसको कहते हैं वे पहन के, पायल वो चांदी के पायल सब पहन के उस चंचनाते हुए आवाज करते हुए जाती थी दौड़ के स्वागत करने के लिए। तो वो आज वो नहीं कर पा रही है, उसके अंदर में ये उसकी उम्र के कारण आज वो बूढ़ी हो गई, जिसके कारण वो वसंत ऋतु से क्षमा मांग रही है। सेकंड पैरा, ओ स्वीट आई एम नॉट फॉल्स टू यू ओनली माई सॉरो रिडन हार्ट। फिर वो कह रही है कि हे वसंत ऋतु, मैं आपके साथ गलत नहीं हूं, मैं आज भी आपकी विश्वसनीय हूं। आई एम फेथफुल, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। लेकिन मैं वो दौड़ के वो स्वागत आपके नहीं कर पा रही, लेकिन आज भी मेरे दिल के अंदर में वो भावनाएं भरी हुई है, वो ईमान मेरे अंदर में है। अगेन आई एम रीडिंग, ओ स्वीट आई एम नॉट फॉल्स टू यू ओनली माई सॉरो रिडन हार्ट। हमारा जो हृदय है जो दुख से भरा हुआ है, has fallen from its high estate of laughter and has lost the clue to all the spring joy it knew। कह रहे कि हमारे जो हृदय में जो हमारे अंदर में खुशी थी, जो हम हर्ष उल्लास के साथ जाते थे, वो हर्ष उल्लास वो नीचे उतर गया है। That has come down the high from the high estate that has fallen। मैं जो हंस के जाती थी वो हंसी मेरी कम हो गई है। ये सब वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो आज उसकी उम्र बहुत हो गई है, वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। लास्ट पैरा, देयर वाज अ सॉन्ग आई यूज्ड टू सिंग, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, फॉरगिव मी ओ माय कॉमरेड स्प्रिंग। कह रही है कवित्री की, एक ऐसा गाना था, एक ऐसा गीत था जो मैं गाया करती थी, लेकिन आज मैं उसको भूल गई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिए। ये वसंत ऋतु, हमारे प्रिय वसंत ऋतु,
Comrade is being referred to a person whom you like very much, sort of beloved, जिसको बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं, उससे वो क्षमा मांग रही है वसंत ऋतु से कि मैं एक गीत गाती थी आपको स्वागत करने के लिए, आज मैं वो गीत भूल गई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिए हमारे प्रिय। This is the poem. There's nothing much difficult in that. It is a very simple, very easy poem. I think so. If you read once, you will understand. There are some hard words, the meaning of which is given. It is very simple. There is nothing much difficult in that. Spring season which comes after the autumn. Greet, to welcome, coming, arrival. Did of old, जो हम पहले करते थे. As she greeted in her young age. जो यंग थी उस समय जो वो स्वागत करती थी, वो क्लैड मतलब जो कपड़ा पहनी हुई है, वस्त्र धारण की है, क्लोथ, शाइनिंग, ग्लोइंग, एमिटिंग लाइट, शाइनिंग मतलब जो कुछ चमचमाता हुआ है, वेल समथिंग दैट कवर्स और सेपरेट्स, एक ऐसा कपड़ा होता है या एक ऐसा पोशाक होता है जिस जो दूसरे चीज को ढका हुआ रहता है, उसको तोपा हुआ रहता है, उसको कहते हैं वेल। जैसे कि हम आप उदाहरण में दे रहे हैं, जैसे मुस्लिम विमेन है, वे अपने चेहरे को ढकने के लिए एक कपड़ा पहनती है काला सा जिसको हम बुर्का कहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल। फॉल्स मतलब यहाँ कवित्री ये कहना चाहिए, फॉल्स मतलब कि फेथलेस मतलब ये नहीं कि अविश्वसनीय, मैं अभी भी विश्वसनीय हूँ, अविश्वसनीय नहीं हूँ, वो ये कहना चाहिए। सॉरो रिडन, ग्रीफ स्ट्रिकन, सॉरोफुल, हाई एस्टेट, हाई लेवल ऑफ मर्थ एंड रिटायरमेंट। यहाँ मर्थ कहा गया, मर्थ एक नई सी शब्द आपके लिए है। मेरीमेंट आप समझ रहे हो कि मेरी मतलब आदमी खुशी और मनोरंजन करता है। मर्थ इज बीइंग रेफर्ड टू प्रमोद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रमोद, वो खुशी, वो मनोरंजन, उसमें गिरावट हो गई है। जो मैं पहले हंसा करती थी, मैं खुश होती थी, वो आज मुझके अंदर में वो चीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उम्र से थक गई हूँ और मैं आपका स्वागत नहीं कर पा रही, जिसके लिए वो बार बार वसंत ऋतु से क्षमा मांग रही है। और सारे कुछ वर्ड्स है। क्लू मतलब इंडिकेशन, कोई हिंट, किसी तरह का हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। कमरेड मैंने कहा, बिलवेड, यहाँ में वो co-worker bring delights to the people in the varied beauty of vegetation, जो प्रकृति की खूबसूरती के अंदर में जो वो सजी हुई है वसंत ऋतु, उसको वो बहुत ही प्यारी तहे दिल से उसको बिलवेड के तरह, कॉमरेड के रूप में कहती है, उसको कहती। द पोएट्स डिलाइट्स देम विद हर सॉन्ग, कवित्री जो है ये वसंत ऋतु को खुश करती है अपने गाना के माध्यम से। उस समय जब वो जवान थी, आज वो बूढ़ी हो गई, जिसके कारण वो क्षमा मांग रही है वसंत ऋतु से कि मैं वो उस तरह आपको स्वागत नहीं कर पा रही। यही इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत ही भली भांति कवित्री ने, सरोजिनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से बसंत ऋतु के आगमन और उसकी जो स्वागत जो वो करती थी जब वो जवान थी, और आज वो नहीं कर पा रही, जो कारण उसकी उम्र हो गई है जिसके कारण, और वो क्षमा मांग रही है। वो आज भी वो अपने आप को बसंत ऋतु से कह रही है कि मैं अभी भी विश्वसनीय हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं फॉल्स नहीं हूँ, आई एम स्टिल फेथफुल, बट आई फॉरगेट द सॉन्ग, मैं वो गीत भूल गई हूँ जो मैं गीत गाती थी, और जो मैं दौड़ के जाती थी, सोने के गहने से भरा हुआ, चांदी के पायल खनखनाते हुए सकते, आज मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं क्षमा आपसे मांग रही हूँ बसंत ऋतु से। There are some exercises also which are related over to the poem. Very simple, very easy. If you have paid attention to the explanation which I have given, there will be no problem. I am just reading it, and I will give you the homework that will be for the question and answers. Like in multiple choice question, first the poetess addresses the poem to, किसको ये कह रही है? ये कविता बसंत ऋतु को, ठीक है। The poetess used to wear dash colored anklets on her feet, जो पैर में वो कौन सी रंग के वो पहनती थी, एंकलेट्स जिसको कहते हैं पायल। ये जो है वो चांदी कलर का, सिल्वर कलर,
In the poem, the poetess is asking for इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या कह रही है, क्या माफी मांग रही है? वो माफी मांग रही है, वो क्या चीज करना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है? वो माफी मांगना चाह रही है, फॉरगिवनेस. The poetess used dash to greet the coming of the spring. The poetess used to run. ठीक है, दौड़ के जाती थी स्वागत करने के लिए, जैसे बसंत ऋतु आता था. Run will be the correct answer. The poetess has now forgotten the dash he used to sing. Poetess आज भूल गई है वो गाना जो वो उस समय गाना गाती थी. The song answer will be. Fill in the blanks where alternate response. First, the poetess is still dashed to spring. यहाँ दिया है false और faithful. सही आंसर होगा faithful. आज भी वो बसंत ऋतु के साथ उसी तरह विश्वसनीय होके वहाँ है, बैठी हुई है उसकी, लेकिन वो जोश हर्ष उल्लास नहीं है, वो faithful आंसर होगा. The poetess used to greet spring clad in the veil of. जो वो जाती थी बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, तो वो पूरा सोना से भरी हुई थी, सोना with gold. Answer will be ridden heart has brought his change. Her sorrow ridden, वो जो दर्द भरा हुआ, उसके अंदर में जो दर्द भरा हुआ दिल था, हृदय था, वो ही उसके अंदर में ये बदलाव ले आया है. The poetess has forgotten the dash of spring joy. The poetess has forgotten the secret, जो उसकी राज थी, जो उन्होंने वो गाना गाती थी, वो गाना जो गा के वो स्वागत करती थी, वो गाना को वो भूल गई. वो match the following. The poetess greeted. First one is done for you in the book. Spring with silver anklets on in her feet. Sorrows of life have made the poetess forget the sweet songs. The odds of life chilled the joys of youth. There was a song which the poetess used to sing. Forgive me, O my comrade spring. यही उसकी आखिरी वाक्य है जो वो कह रही है, मुझे क्षमा करो हमारे प्रिय वसंत ऋतु. और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर आर देयर. शॉर्ट क्वेश्चंस, very short and long. I think so you will not have any problem. This will be your homework and you be ready. I will come in the next class and I will ask you for that. And if you are having any doubt, अगर कोई पूछना होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे मुझे लग रहा है कि आप सब समझ गए होंगे, फिर भी अगर कुछ बात होगी तो आप मुझे अगले क्लास में पूछिएगा. This is your homework. Okay.